Good morning, my dear friends and respected faculty members. Today we discuss the next topic from the chapter Projection of Planes and Lamina. Okay, so up to the three cases already we discussed. Now we start the case number 4, and from case number 4 he said we have a lamina and that is perpendicular to both. That is perpendicular to both. It means we have a lamina. In that case, suppose we have a pentagonal lamina and that lamina is perpendicular to both, means perpendicular to HP as well as perpendicular to VP. So again, before starting the concept or case, my humble request to all my dear students and respected faculty members, please share my lectures with your students group on WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. क्लियर, ताकि वो लोग जो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के कारण वो इजीली इस सब्जेक्ट को स्टडी कर पाएं घर पे बैठे. तो प्लीज शेयर माय लेक्चर्स विद ऑल योर स्टूडेंट्स. क्लियर, एंड on the WhatsApp, on the Instagram, on the Facebook, you can share my lecture. You can also share my YouTube link, that is Professor Bhanot, Profbhanot. Clear? So you can share my all lectures. I post all lectures on the YouTube day by day, so you can send the link of my YouTube, or you can share my lectures with your students also, and with the YouTube link also. So thank you very much. So the case is we have a pentagonal lamina and he said one of its suppose corner lie on HP. One of its corner lie on HP and the whole lamina is perpendicular to both HP as well as VP. Okay, so when I said the lamina is perpendicular to both, before that I want to set the line is perpendicular to both. No, हमने ये स्टडी किया था कि लाइन किसी भी प्लेन के साथ अगर आपके पास एक लाइन है, suppose you have a line and the line is cannot be perpendicular to both of the principal plane HP as well as VP. Line only and only perpendicular to one of the principal plane. If that is perpendicular to HP, then that is definitely parallel to VP. Clear? And if that is perpendicular to VP, then that is definitely parallel to HP. Clear? And also parallel to PP, profile plane. Clear? So the line cannot be perpendicular to both, but the line can be parallel to both. Line can be parallel to both HP as well as VP with the respective plane. So line can be parallel to both plane but cannot be perpendicular to both plane. Clear? So ये तो लाइन का कंसेप्ट था. बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द lamina can be parallel to both. No, lamina cannot be perpendicular to both planes. If that is perpendicular to one, then that is definitely parallel to other. Clear? Definitely parallel to other. ऐसे किया था हमने कल लैमिना को, तो इस केस में लैमिना क्या था हमारे पास, perpendicular to HP as well as parallel to VP. क्लियर? और अगर इसी लैमिना को सपोज मैं ऐसे रखता हूं, तो इन दैट केस द लैमिना इज व्हाट, द लैमिना इन दैट केस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन. सो लैमिना कैन नॉट बी पैरेलल टू बोथ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन लाइक ए line. But if I say the lamina is perpendicular to both, then the answer is yes. Lamina can be perpendicular to both. Lamina दोनों प्लेन्स के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है. कैसे? सबसे पहले मैंने लैमिना को परपेंडिकुलर टू HP किया, सपोज लाइक दिस, द लैमिना इज परपेंडिकुलर टू HP. क्लियर? नाउ द होल लैमिना इज व्हाट, द होल लैमिना इज नाउ पैरेलल टू VP. पूरा लैमिना अभी तक VP के साथ पैरेलल था. Now the whole lamina is what, parallel to VP. But if I want to perpendicular to VP also, then the condition of the lamina is like this. तो उस केस में लैमिना ऐसे हो जाएगा. So in that case you can say
the lamina is perpendicular to both. Yes, practically you can see from your front view, you can see a line of a lamina. Clear? So when a plane or lamina is perpendicular to any of the principal plane, then that is just like a line on that principal plane. That is a edge view. Clear? And in that case, the whole lamina perpendicular to VP, VP के साथ perpendicular है तभी आपको एक line दिख रहा है. But that is also perpendicular to HP. This is also perpendicular to HP. Horizontal plane के साथ भी ये क्या हुआ? Perpendicular हुआ. Clear? So this is the case when we said the lamina is perpendicular to both. Then our answer is yes. Lamina can be perpendicular to both of the principal plane HP as well as VP. Clear? Okay. तो lamina perpendicular to both तो हमने कर दिया. As per this statement, lamina perpendicular to both तो कर दिया. But when I draw the problem of lamina, तो इस problem को मैं कहाँ से start करूँगा? Because up to here, up to the case of third, we already covered when we start the problem of lamina, then always start from its true shape and size. Always start from its true shape and size. But in that case, the front view is what? In that case, the front view of our lamina is just like a edge view, only a line. Because that is perpendicular to VP. So front view just like a edge view, a line. And the top, in that case, the top view is also as a edge view because the lamina is perpendicular to HP. Horizontal plane के साथ perpendicular है, तो top view से भी एक edge view दिखेगा. Clear? What is the thickness of the edge view? That is negligible. That is just like a line. Already as per the definition of lamina, what is the thickness of the lamina? We count on that is negligible, just like a line. तो top view से भी lamina एक line दिखा और front view से भी एक line दिखा. Clear? But as per the condition, as per the concept, when we start the problem of lamina, then always start from its true shape and size. तो इसमें तो फ्रंट व्यू में भी एक लाइन दिख रहा है, टॉप व्यू में भी एक लाइन दिख रहा है, तो फिर हम इसको फ्रंट व्यू से ड्रॉ करें या चाहे टॉप व्यू से ड्रॉ करें. अब इस केस में ना तो हम इसको फ्रंट व्यू से ड्रॉ करेंगे ना ही टॉप व्यू से ड्रॉ करेंगे. अब इस केस में हम इसको साइड व्यू से ड्रॉ करेंगे. Why? Because in that case we have here suppose profile plane, and where the lamina is perpendicular to HP as well as perpendicular to VP, then that is definitely parallel to PP. Then that is what? That is definitely parallel to PP. On the side view, its true shape lie on it. In that case, its true shape lie on the side view. Because why? Because that is parallel to PP. ठीक है ना? ये आपके सामने अब कौन सा प्लेन था? ये आपके सामने अब प्रोफाइल प्लेन था. सो इन दैट केस योर lamina डेफिनेटली पैरेलल टू PP. अब आपका पूरा lamina प्रोफाइल प्लेन के साथ क्या हुआ? दैट इज व्हाट? दैट इज पैरेलल बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP. सो इन दैट केस द lamina इज पैरेलल टू PP. तो इसका ट्रू शेप कहाँ पे चला गया? प्रोफाइल प्लेन के ऊपर. क्लियर? And after taking the projection on profile plane, what we do? We rotate the PP into anti-clockwise as per the condition of first octant. So PP rotate anti-clockwise direction. So it means its true shape lie where? After ZY plane, its true shape lie in the side view. Clear? And above XY or maybe on XY. Is it clear? And in that case, he say one of its edge lie on HP. Suppose in that case, he said one of its edge lie on HP. तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा कि एज जो है जब हमने रोटेट किया तो जहां नीचे ये रोटेट हो रहा है प्रोफाइल प्लेन, वहां नीचे भी आपके पास HP है, तो उसका साइड व्यू में एज XY के ऊपर लाई करता हुआ हमें नजर आ जाएगा. क्लियर? तो साइड व्यू पे XY पे एज लाई करता हुआ नजर आ गया. So in that case, the lamina is what? In that case, the lamina is perpendicular to both of the principal plane. You can say yes, the lamina can be perpendicular to both of the principal plane. Clear? And in that case, where its side view? In that case, its side view always lie on the profile plane. Side view profile पे lie करेगा. तो इस केस को जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हमेशा हम
आफ्टर ZY मीन्स साइड व्यू से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी कवर दिस थिंग इन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन. Here is the side view, that is always after ZY. So here we have the XY line. So with that I draw one line is more, and that is suppose that is the ZY line. That is which line? That is the ZY line. ठीक है. Z क्यों? क्योंकि वो साइड व्यू पे चला गया, और साइड व्यू में Z एक्सिस कवर करते हैं, और Y क्यों? बिकॉज फ्रंट व्यू VP पे आ रहा है, VP पे नॉर्मली Y एक्सिस को हम कवर करते हैं. Clear? So here we have the ZY plane. So in that case, the side view always, the true shape of the lamina always lie after which, after where, after the ZY plane. Is it clear? Okay. So अब हमारे पास उसका एच व्यू ZY प्लेन पे तो देखी, लेकिन जब रोटेट किया देन इट्स एच व्यू लाई ऑन द HP. तो इट मीन्स अब हम लैमिना का एच व्यू XY पे लाई करा के फिर लैमिना को ड्रॉ करना शुरू करेंगे. क्लियर? So now its edge view 1 and 2 lie on HP. So in that statement he said we have a regular pentagonal lamina ABCDE, or maybe he can say we have a regular pentagonal lamina, but what is that? That is 1 2 3 4 5. Maybe he can give the name of the edge 1 2 3 4 5. Maybe he can give the name what? ABC. Okay. So here that is pentagonal lamina. अब pentagonal lamina आपको बनाना मैंने सिखाया था. 0 डिग्री लाइन हो गया, ठीक है. जितना उसका जितना पेंटागन का एज है उस एज को आप कट करोगे उस लाइन पे. सपोज आई कट हियर, सपोज 1 and 2. जितना एज है, सपोज ही सेट द एज ऑफ द पेंटागन lamina is 40, देन कट हियर 1 and 2 40. एंड पेंटागन है तो टोटल एंगल कितना होता है 360, और पेंटागन का आपस में एजेस का एंगल क्या हुआ 360 डिवाइड बाय 5. इट मींस ईच एंगल शुड बी हियर एट 72 डिग्री. सो दिस साइड you can draw with the protector outer angle 72 degree, and this is also 72 degree both side. So after that open the compass 1 to 2 and cut on that angle, and from this side cut on that angle 72 and 72. So where it cut there, definitely locate the point 3 and here 4. Clear? Now we need the point 5. So how we can find the point 5? Again open the compass 1 to 2, fix on 3 and make a arc like this direction, and fix on 4 and make a arc like this direction. So where the both arcs are cut to each other, there locate the point 5, and you can meet it in the straight line. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 1 to 2, 2 to 3. Sorry, here the point is 4, because these points should be in the chain. So 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 1. So you can make the pentagonal lamina with that method. So in that case he said one of its edge lie on HP. उसका एक edge HP पे lie कर रहा है. So due to that edge lie on the XY line. Clear? Because that is in this condition ना. S condition में था perpendicular to both HP and PP, और इसकी true shape कहाँ है PP पे. And after taking the projection on PP, when we rotate the PP into what? Into which direction? When we rotate the PP into anti-clockwise direction, then that is true shape in the side view like this, and edge lie on XY. So after ZY, edge lie on XY. Clear? So in that case he can give the distance. Suppose in that case maybe he can give the distance, the corner nearest to VP. So corner nearest to, suppose myself is a VP, तो corner nearest to VP कौन सा हुआ? कॉर्नर नियरेस्ट टू VP, यही वाला कॉर्नर जो मेरी तरफ यही हुआ ना. और जब मैंने इसको सपोज ये कॉर्नर हुआ जो मेरी तरफ है नियरेस्ट टू VP, मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ठीक है. तो ये कॉर्नर जो मैंने पकड़ा हुआ है दोनों फिंगर्स में, तो ये नियरेस्ट टू VP है. तो जब मैंने इसको रोटेट किया PP को, तो ये कॉर्नर नियरेस्ट टू किसकी आ गया इधर इस तरफ. इट मींस नियरेस्ट टू ZY प्लेन. तो इट मींस अगर वो कॉर्नर फिक्स कर रहा है द कॉर्नर नियरेस्ट टू व्हाट VP, that having the distance, suppose he say 10 mm, then definitely this corners 3 having the distance 10 mm from the ZY plane. Clear? But if that is not fixed, then you can take any, no problem. But this corner never should with
टच विद द ZY, ये कॉर्नर ZY के ऊपर तभी टच होगा व्हेन ही सेड द कॉर्नर नियरेस्ट टू VP इट लाई ऑन द वर्टिकल प्लेन, तभी वो ZY के ऊपर जुड़ा हुआ नजर आएगा। अगर वो कह रहा है लाई ऑन वर्टिकल प्लेन, क्योंकि जहां VP खत्म हो रहा है पीछे PP आपके पास इधर मिल रहा था, तो वहां पे कौन सी लाइन प्रोड्यूस हो रही थी, ZY। तो जब इधर से देखा तो वो कॉर्नर 3 हमें ZY पे लाई करता नजर आया। इफ यू सेट द कॉर्नर C और मे बी कॉर्नर 3 लाई ऑन VP, तब वो कॉर्नर ZY पे दिखेगा, अदरवाइज वो कॉर्नर ZY पे नहीं शो करना कभी भी, ना ही उसको टच करके ZY लाइन ड्रॉ करनी है। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा व्हेन ही सेट द कॉर्नर लाई ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर लाई ऑन VP, ठीक है। और अगर उसने ये बोला कि दैट इज ओनली परपेंडिकुलर टू बोथ एंड ही इज नॉट गिविंग द डिस्टेंस हाउ मच इन फ्रंट ऑफ VP, then you can take this distance is anyone from 3 to ZY plane. Is it clear? But if we fix that distance is 20 mm in front of VP, then definitely that ZY line is not here. That ZY line is here, and 3 to ZY line distance should be then in that case that is 20 mm. Is it clear? So these are the conditions. He can fix the corner, he can give the distance of that corner. ठीक है, and if that is not given, that not fixed on VP and not giving the distance from VP, then no issue, no problem, you can draw your true shape of the pentagonal lamina anywhere after the ZY plane. That's all. Clear? So in that case, in the side view, this is which view? Side view. So this is again the abbreviation for the side view. Side view always denoted with the double dash. तो साइड व्यू विद द डबल डैश, A डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश एंड 5 डबल डैश। सो टॉप व्यू विदाउट डैश, टॉप व्यू पॉइंट्स ऑलवेज डिनोटेड विदाउट डैश, साइड व्यू विद डबल डैश एंड फ्रंट व्यू विद सिंगल डैश। क्लियर? दैट इज द एब्रिविएशन। सो दिस इज द साइड व्यू। साइड व्यू दिख गया आपको, और किस शेप में दिखा ये? दैट इज ए ट्रू शेप। ट्रू शेप में आपको पेंटागन का साइड व्यू दिखा इस केस में। Now we want to front view. We want to draw the front view of that pentagon. तो अब हमने पेंटागन का फ्रंट व्यू ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फ्रंट व्यू क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर टू HP है, तो डेफिनेटली क्या दिखेगा? एक लाइन दिखेगा, एक लाइन दिखेगा जो HP से लेके इस कॉर्नर तक है। क्यों? क्योंकि उसका बेस HP पे है, ठीक है ना। तो इट मीन्स एक लाइन दिखा आपको, तो वो लाइन फ्रंट में कितनी हाइट दिखेगी? दैट इज फ्रॉम बेस टू टिप, दैट इज फ्रॉम बेस टू टिप। तो वो हाइट, अब हम पहले तो ये कि वो जो हाइट दिखेगी वो बेस टू टिप दिखेगी, क्लियर। लेकिन वो हाइट तो अभी हमारे पास यहाँ आएगी नहीं, सिर्फ H दिया है, सिर्फ पेंटागन का H दिया था, ये हाइट तो दी नहीं। तो ये हाइट कहाँ से आएगी? जितना मैं आपको इधर साइड से दिख रहा हूँ, ठीक है, 5/6 सपोज, उतना ही आपको फ्रंट से दिखूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए फाइंड आउट इट्स हाइट we project the side view, क्लियर। तो हम हाइट फाइंड आउट करने के लिए फ्रंट व्यू में साइड व्यू को प्रोजेक्ट कर देंगे, साइड व्यू की टिप की ओर इसको प्रोजेक्ट कर दिया, इट मींस डेफिनेटली इतनी हाइट आएगी, ठीक है। और साथ साथ ये पांचों पॉइंट भी नजर आएंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को भी अभी हमने, चलो पहले तो इतनी हाइट नजर आएगी, ठीक है। अब इतनी हाइट की एक लाइन नजर आ रही है आपको, इतनी हाइट की आपको फ्रंट से एक लाइन नजर आ रही है, यू कैन सी बिकॉज वी काउंट ऑन द नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ द लैमिना, तो लैमिना की उतनी हाइट की एक लाइन नजर आ रही है फ्रंट से, क्लियर। तो ये लाइन तो हाइट तो आ गई, लेकिन वो लाइन हमने प्रोफाइल प्लेन से कितनी इधर रखनी है? दैट लाइन इज हाउ मच फ्रॉम द प्रोफाइल प्लेन, क्योंकि प्रोफाइल प्लेन तो मैं ट्रू शेप तो लेनी थी, लेकिन इस प्रोफाइल प्लेन से जितनी ये लाइन आ रही है इसकी, इस प्रोफाइल प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना है? नॉर्मली दैट डिस्टेंस इज नॉट गिवन। अगर ये गिवन नहीं है तो वो लाइन आप ZY से कितने भी इधर 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 कहीं भी रख सकते हैं, क्लियर। बट इफ दैट डिस्टेंस इज गिवन, सपोज ही से द लामिना इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू perpendicular to HP, also perpendicular to VP, but that having suppose 20 mm in front of PP. This is profile plane, 20 mm in front of PP.
तो डेफिनेटली फिर वो लाइन आपको 20 mm ZY से, इधर PP था तो जहाँ PP था वहाँ ZY थी, तो वो लाइन 20 mm ZY से इधर नजर आएगी। क्लियर? सो दैट इज हाउ मच 20 mm इन फ्रंट ऑफ ZY प्लेन। तो ये ZY है, यहाँ से 20 mm ये लाइन इधर नजर आएगी, सपोज दैट इज 20। तो ये लाइन अब आपको यहाँ फ्रंट व्यू ऐसे नजर आएगा। क्लियर? तो अब एक ही जगह पे लैमिना खड़ा है, उसी जगह से उसको फ्रंट देख रहे हो, उसी जगह से टॉप देख रहे हो, तो टॉप में भी एक लाइन आएगी, वो भी 20 mm इन फ्रंट ऑफ PP आएगी। इसलिए जब हमने फ्रंट की प्रोजेक्शन ली, ठीक है, साथ साथ हम टॉप की लाइन फाइंड आउट करने के लिए भी उसको लाइट प्रोजेक्शन को आगे एक्सटेंड कर देंगे एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ZY प्लेन। क्लियर? क्योंकि ये टॉप में भी तो उतनी दूर इधर आएगी ना। क्लियर? अब हमने फ्रंट में और क्या फाइंड करना है? फ्रंट में हमें ये पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो ये दिख गया ऊपर का पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था 4, इधर 5 और 3 दिखेगा, इधर 1 और 2 दिखेगा। सो उन पॉइंट की भी लोकेशन लोकेट करनी है कि वो पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी लोकेशन लोकेट करने के लिए अगेन वी ड्रॉ द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम साइड व्यू। तो सेम एंगल 72 डिग्री होने के कारण आपका 5.3 को कट करता हुआ ऐसे जाएगा। क्लियर? लाइक दिस। और ऐसे 1 2 तो ऑलरेडी कहाँ पे आ रहे हैं, XY भी आ रहे हैं। क्लियर? तो वेयर इट कट देयर लोकेट दैट पॉइंट्स, यहाँ पे वो पॉइंट लोकेट होंगे। यहाँ पे लोकेट हो गया फ्रंट का है तो 4 डैश, यहाँ पे 1 और 2 लोकेट होंगे, यहाँ पे 3 और 5। बट which are the first as per rule of projection, which are the first? अब देखो इधर ध्यान से देखना इस चीज को। मैंने इधर पॉइंट रखा था 1, इधर रखा था 2, ये 3 था मेरे पास, ये 4 था, ये 5 था, ऐसे ही था ना हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे ये पड़ा हुआ है। क्योंकि ये PP पे चला गया था तो ऐसे ही आता, लेकिन ये कैसे पड़ा, कैसे हुआ है, ये तो PP पे ऐसे दिखा ना आपको, प्रोफाइल पे ऐसे दिखा, ट्रू शेप इसकी प्रोफाइल पे ऐसे दिख रही है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। इट मींस इधर ऐसे। तो ये जो पॉइंट आपको इधर दिख रहा था, ये कौन सा था 5, अब 5 मूव होके इधर चला गया। ऐसे इधर आपको दिख रहा था पॉइंट नीचे कौन सा 1, तो 1 मूव होके इधर चला गया। इट मींस पहले हमें दिखे 4 5 और 1, और देन 5 कोइंसाइड ऑन 3 एंड 1 कोइंसाइड ऑन 2। तो एज पर रूल ऑफ द प्रोजेक्शन जो पॉइंट हमें पहले दिखते हैं हमेशा हमने वो पहले लोकेट करने हैं इन द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पहले कौन सा दिखा है, जैसे 1 डैश, then after that we have the 2 dash, from that side here we have first 5 dash, then after that we have the 3 dash. So this is the front view of your lamina when the lamina is perpendicular to HP, clear, and also perpendicular to VP. So this is which view, this is our which view, this is the edge view in the front view, this is the edge view in the front view of that lamina, clear. Now we want to find out its top view. तो टॉप व्यू में देखो, अब टॉप व्यू में क्या क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में आपको ये 2 कॉर्नर दिखेंगे मैक्सिमम क्रॉस एरिया, और एक ये वाला दिखेगा। क्लियर? तो ये, लेकिन ये साइड व्यू में ऐसे पड़ा था, फ्रंट में तो ऐसे पड़ा है। तो फ्रंट में अगर अब ध्यान से देखना, तो हमें पहले पॉइंट की प्रोजेक्शन मैं बताऊं आपको कौन कौन सी दिखेगी। तो इट मींस पॉइंट की प्रोजेक्शन कौन कौन सी आई हमारे पास, पॉइंट की प्रोजेक्शन आ गई यहाँ से हमारे पास फ्रॉम द 3, 1 और 2 ऑलरेडी XY भी है, एंड फ्रॉम 4 एंड आल्सो फ्रॉम 5। तो ये प्रोजेक्शन हमारे पास पॉइंट्स की अब आ रही है, ये प्रोजेक्शन आ रही है ना। ओके, सो इन कहाँ से, जब हम इसको साइड को टॉप से देखें, ठीक है, साइड को टॉप से देखें, क्योंकि ये साइड थी ना आपके पास, देखो ये साइड व्यू था, तो ये प्रोजेक्शन आपके पास आ गई किधर, कि ये प्रोजेक्शन आपकी आ गई 4 की, ठीक है, इधर प्रोजेक्शन आपकी आ गई, ये इधर था ना, तो इधर 3 की आ जाएगी, ऐसे 2 और 1, और इधर प्रोजेक्शन 5 की आ गई। तो ये 90 डिग्री प्रोजेक्शन आ गई कहाँ पे, HP पे, मीन्स XY पे। तो XY पे 90 डिग्री पॉइंट की प्रोजेक्शन है, लेकिन ये पड़ा कहाँ पे हुआ है, पड़ा तो यहाँ नहीं हुआ एक्चुअली पोजीशन। अब टॉप की लोकेट करनी है, तो टॉप तो 20 mm इन फ्रंट ऑफ PP इधर पड़ा हुआ था, और इधर कब देखा, जब ये रोटेट होके इधर गया था। तो इट मीन्स इधर से रोटेट होके ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज इधर आ रहा है अपनी पोजीशन के, सॉरी क्लॉकवाइज अपनी पोजीशन के लिए आ रहा है इधर, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, PPs पे, कितना 20 mm इन फ्रंट ऑफ PP, क्लियर ना, तो इस पोजीशन पे है। तो इट मीन्स अब हमने क्या किया,
कहाँ से रोटेशन कहाँ पे हो रही है, ऑलरेडी लाइन में भी बता चुका हूँ, जहाँ पे तीनों प्लेन मीट करते हैं। कहाँ पे मीट करते हैं, ऑन दिस पॉइंट एक्स वाई और जेड वाई प्लेन मीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। अब इस पॉइंट से अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से अब हमने इसकी रोटेशन लेनी है कि ये पॉइंट रोटेट होकर हमारा इधर आ रहा है। इट मींस वी ओपन द कंपास फ्रॉम एक्स वाई जेड टू पॉइंट 3 एंड रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, ऐसे अगेन वी फिक्स द कंपास एक्स वाई जेड एंड ओपन टू द पॉइंट 2 एंड वी रोटेट इट। क्लियर? अगेन we open the compass from x, y, z to point 4 projection and we rotate it. Again we open the compass x, y, z to point 1 projection and we rotate it. Again we open the compass x, y, z to point 5 projection and we rotate it. Clear? तो हमने ये पांचों पॉइंट की प्रोजेक्शन इधर रोटेट कर दी है। In which direction? In the clockwise direction now. Clear? क्योंकि clockwise क्यों? क्योंकि पीपी एंटी क्लॉक रोटेट होकर उधर गया था साइड में, लेकिन इसकी सही पोजीशन कहाँ थी, इधर ऑब्जेक्ट की। तो ये जब साइड से इधर लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो हम क्या रोटेशन दे रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो वी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन कितना कितना इधर पड़ा था, तो यहाँ पे अब आपके पास पॉइंट क्या आ गया, अगर पॉइंट को और अच्छी तरह लोकेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आ गया 3 नॉट, यहाँ पे आ गया 2 नॉट, यहाँ पे आ गया 4 नॉट, यहाँ पे आ गया 5 नॉट, यस, और यहाँ पे आ गया 1 नॉट। अब देखो 1 और 3 दोनों आउटर चले, 1 और 5 यहाँ पे, यस यहाँ पे 1 था सॉरी। तो अब 3 और 5 दोनों आउटर चले गए हमारे पास, 3 और 5 क्या हुआ, दोनों आउटर चले गए। देखो जैसे अभी मेरे से गलती हुई है, ऐसे एग्जाम में आपसे गलती ना हो, पॉइंट को अच्छी तरह लोकेट करना है और अच्छी तरह देखना है किसकी प्रोजेक्शन आ रही है, अदरवाइज यहाँ व्यू देखने में प्रॉब्लम आएगी आपको। क्लियर? तो ये रोटेशन हो गया, इधर आ गई पॉइंट, लेकिन है कितना ये, है कितना ये, दैट इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ पीपी। पीपी से कितना इधर है, 20 mm इधर है, 20 mm इधर है। सपोज ये मैं कहूँ कि ये क्यूब का डिस्टेंस 20 था, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली आपका यहाँ पड़ा है, लेकिन आपका प्रोफाइल प्लेन कहाँ पड़ा है, आपका प्रोफाइल प्लेन यहाँ पे पड़ा है इधर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर ऑब्जेक्ट एंड प्रोफाइल प्लेन, दैट इज हाउ मच, दैट इज 20 mm अपार्ट। ठीक है, तो जहाँ प्रोफाइल प्लेन है वहाँ पीछे कौन सी लाइन दिख रही है, जेड वाई। तो जेड वाई से 20 mm इधर दिख रहा है, फ्रंट में भी और एज वेल एज टॉप में भी। ये तो फ्रंट का डिस्टेंस हो गया, और ये कहाँ से दिखा, टॉप से 20 इधर, टॉप से 20 इधर दिखा, ये सारा क्रॉस पॉइंट एचपी में, और रोटेट किया था तो वो नीचे, तो इट मींस वो यहाँ दिखेंगे। तो उसको लेने के लिए क्या किया, पहले 90 डिग्री देखा, पहले 90 डिग्री प्रोजेक्शन आई, और फिर हम क्या किया हमने, फिर पीपी को इधर लेके आए रोटेट, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेट करके हम इधर ले गए। ठीक है, लेकिन दिखेगा कहाँ, एचपी पे। ठीक है, और एचपी रोटेट हुआ तो कहाँ गया, बिलो एक्स वाई, तो इधर। तो इसलिए हम इसका प्रोजेक्शन इधर जेड वाई जो बिलो एक्स वाई लाइन जा रही है वहां पे लेके सभी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन। इट मींस फ्रॉम दैट साइड 3, फ्रॉम दैट साइड वी हैव 2, फ्रॉम दैट साइड वी हैव 4, फ्रॉम दैट साइड वी हैव 1, फ्रॉम दैट साइड वी हैव 5। तो ये सारा प्रोजेक्शन इसके इधर आ गया हमारे पास। ऑल प्रोजेक्शन आर हियर नाउ लाइक दिस। तो यहाँ पे आ गया आपके पास प्रोजेक्शन सारे इधर ऐसे। क्लियर? तो इट मींस यू कैन लोकेट द पॉइंट डेफिनेटली। इट मींस हियर वी हैव द पॉइंट 3, इधर कौन सा पॉइंट आया था, सेकंड 2, इन द सेंटर वी हैव द पॉइंट 4। अब देखो पॉइंट कहाँ अलग अलग शफल हो रहे हैं। Here we have the point 1 and here we have the point 5. अब देखो 1 कहाँ चला गया, 5 उसके साथ आ रहा है, 3 वो ऊपर चला गया, 2 उसके नीचे, 4 सेंटर में आ गया। सो पॉइंट ऐसे शफल हो जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम फ्रंट में, टॉप में आपको क्या दिखा, टॉप में एक एज व्यू दिखा हमें, दैट इज फ्रॉम ओनली 3 to where 3 to 5. So that edge view only should be dark now. So that is 3 to 5. समझ आ गई ना बात? तो this is the case, this is again which view, this is again edge view. So this is the case when the lamina is what? When the lamina is perpendicular to both HP as well as VP. तो आपके पास फिर ये केस बनेगा। ठीक है, तो
जब भी लैमिना परपेंडिकुलर टू बोथ होगा ऑलवेज ड्रॉ इन 3 व्यूज, याद रखना। जब भी लैमिना परपेंडिकुलर टू बोथ होगा तो हमेशा इसके 3 व्यू बनेंगे। अदरवाइज ऑन द ऑल अदर प्रॉब्लम्स, ऑन द ऑल 5 केसेस, तब तक आपने साइड व्यू शो नहीं करना जब तक उसने स्टेटमेंट में बोला नहीं है कि ड्रॉ इट साइड व्यू। अगर बोला स्टेटमेंट में देन डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इफ ही सेड इन द स्टेटमेंट ड्रॉ इट्स साइड व्यू आल्सो, देन डेफिनेटली यू विल ड्रॉ द साइड व्यू। बट इन द ऑल 5 other cases we never draw the side view whenever he is not asked in the problem. Clear? But in that case, only in the single case of the lamina, कि जब उसने प्रॉब्लम में बोला नहीं होगा फिर भी हमें साइड व्यू से ही प्रॉब्लम को ड्रॉ करना होगा, मींस फिर भी हमें साइड व्यू ड्रॉ करना होगा। क्यों? क्योंकि इन दैट केस इट्स ट्रू शेप लाई ऑन पीपी। तो जब तक इसकी ट्रू शेप नहीं आएगी तब तक आप उसकी शैडो कभी ढूंढ नहीं पाओगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोजेक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो दैट इज ओनली सिंगल केस, and in that case he never said in the problem draw its side view, but by default we start that problem from its side view because its true shape lie on its side view, lie on its pp। ठीक है, तो ट्रू शेप आपको साइड व्यू से ही नजर आएगी। क्लियर? सो दिस इज द केस व्हेन ही सेड द लैमिना इज व्हाट, लैमिना इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP as well as VP। So with that you can draw your lamina perpendicular to both। Clear? तो आज इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही। So thank you very much। We discuss one case today। The lamina is perpendicular to both HP as well as VP। So thank you very much।